Hello everyone, this is Manisha Pathak. I'm a life coach and a tarot counselor. आज हम कार्ड्स देखने वाले हैं हमारे सक्सेस के लिए. That what are the keys? We all want to be successful in whatever we do. हम सब चाहते हैं कि हमारी पोटेंशियल तक हम पहुंचे, लेकिन हमें उसके बीच में कौन सी रुकावटें हैं या वो कौन सी गाइडेंस है जो हमें हेल्प कर सकती है, वो आज हम हमारी रीडिंग में देखने वाले हैं. आप सबको इतना बता देती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है. अगर आप कोई भी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं अपने किसी भी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट के बारे में, तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं. कांटेक्ट डिटेल्स और वेबसाइट डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में है. और ये जो रीडिंग है एक जनरल रीडिंग, और हम लोगों ने टाइम स्टैम्प्स भी रखे हैं. तो अगर आप डायरेक्टली सिर्फ अपना ही रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके अपना टाइम स्टैम्प सिलेक्ट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. यहाँ पे 4 पाइल्स हैं. पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 और पाइल नंबर 4. आपको कोई भी एक पाइल सिलेक्ट करना है. मैं इन पाइल्स पे कुछ क्रिस्टल्स रखूंगी. वो क्रिस्टल्स भी आपको हेल्प करेंगे टू सिलेक्ट योर पाइल. ओके, सो दिस इज सेलेनाइट, दिस इज फ्लोराइट, दिस इज डेजर्ट रोज एंड दिस इज मॉस अगेट. सो दीज आर द 4 piles with 4 crystals. Now just close your eyes. Take 3 deep breaths. 3 लंबी सांसें लीजिए. अपने आप को एकदम सेंटर में लेके आइए, ताकि आप अपने अंदर से, अपने इंट्यूशन से अपना सही पाइल और सही डायरेक्शन और सही गाइडेंस चूज कर सकें. 1 more deep breath. Take 1 more deep breath, please. Yes. Now open your eyes and select the pile. Pile number 1, 2, 3 or 4. So pile number 1, these are your cards. हम देखेंगे कि वो कौन सी चीज है, वो कौन से रास्ते हैं, वो कौन से गाइडेंस हमें मिली है आज, जो हमें हमारे सक्सेस की तरफ लेके जाएगी. हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है. आपके अंदर वो कौन सी शक्ति है और आपको अपने अंदर, अपनी लाइफ में वो कौन कौन से परिवर्तन ला सकते हैं आप, उसके लिए हमें ये कार्ड्स गाइड करेंगे. लेट्स स्टार्ट. ओके, this is the card of fertility, and if you see the card, it's a card totally in beauty of nature. This is the god of nature. There are flowers, there is a rainbow, there is a water body, the river, and there are a lot of greeneries around, and the person is playing some musical instrument. This card is telling you, you have many new ideas. You have a lot of new planning going on. And let me tell you, if this is the first card, you are going very well. The new world is looking for you. Your new opportunities are waiting for you. So don't just wait. Whatever you have decided, whatever plans you have made, please start applying it. Okay? So if I see these 2 cards, these 2 cards are telling me that though you are a career-oriented person, but there is a very strong desire, or there is a strong responsibility, or maybe your part of life which is very much connected with your relationship and the family. So maybe because of your family responsibilities or relationship, you are not able to focus as much as you want to in your career. So if this is your priority, taking the relationship and career together, even then it's very fine, because even these 3 cards are showing that you are very much a family person. If you are looking for family and everything, you are too much spending time with your loved one, that will affect your career. But if it is a priority, it is altogether a different matter. Let's see the further guidance. Yeah, see. This is it. Temptation. Maybe you are distracted in relationship. Maybe you are too much focused in the other areas other than which you should. Because temptation बहुत क्लियर बताता है कि टेम्पटेशन का मतलब ही है कि वो चीज जो आपको जिंदगी में अपने रास्ते से भटका रही है. तो अगर ये कार्ड आया है आपके इन तीनों के बाद, हम सक्सेस की बात कर रहे हैं, और सक्सेस में 1, 2 एंड देन 3rd, तो आप बहुत सारा वक्त अपने रिलेशनशिप के लिए निकालते हैं, या फिर लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है आपके सराउंडिंग में, जो आपके लव्ड वंस हैं. तो कहीं ना कहीं आपको एक बार बैठ के अपनी प्रायोरिटी तय करने का वक्त आ गया है.
आपकी प्रायोरिटी का तय करना, आपके सारे नए आइडियाज जो आपके मन में है, आपके दिमाग में है, जो आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि आप उसे बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, वो आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई कहीं ना कहीं आपका पूरा ध्यान भटक के रिलेशनशिप की तरफ ज्यादा जा चुका है. If you are already a successful person, then it's a different thing. But if you are starting something, if you are struggling with your career, then this can be one of the reasons which you should check. Let's see further. Though there is a temptation, though there is distraction, still you have that ability to come out of it. You have the ability to grow. You have the ability to blossom in somebody who have the blessing of converting any dream into reality. नेक्स्ट कार्ड देखते हैं. ओके, इट इज द कार्ड बर्ज, फेमिनिन, वीनस का कार्ड है. इसका मतलब ये तो है कि यू लव लग्जरी, यू वांट टू हैव अ लग्जरियस लाइफ. लेकिन कहीं ना कहीं आपके ये दोनों कार्ड बता रहे हैं, और ये तीनों कार्ड रादर, कि आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं. आप शायद अपने लव्ड वन के साथ, अपने बॉयफ्रेंड, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम बिताने में अपने करियर को कभी कभी पीछे छोड़ देते हैं. लेकिन हमें ये समझना है कि जिंदगी में अगर हमें आगे बढ़ना है, हमारे लव्ड वंस के लिए ही सही, लेकिन कल को हमारा करियर अगर इस समय हमारे हाथ से चला जाएगा तो गया हुआ वक्त वापस नहीं आता. तो आई वुड से दैट यू शुड फोकस व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू राइट नाउ. मेक योर प्रायोरिटी लिस्ट, मेक वेरी क्लियर माइंडसेट, मिशंस एंड विजन्स. उससे क्या होगा, आपको ये पता होगा कि आपको कहाँ जाना है. आपके लिए मैं एक और कार्ड निकालना चाहती हूँ फॉर द फर्दर क्लैरिटी. Yes, again. So I would say that if this is a sacral chakra is the chakra of pleasures. तो ये सारे कार्ड जो हैं 1, 2, 3, 4 ये बता रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी, सेक्सुअल एक्टिविटीज या फिर खाने पीने में, अपने ग्लटनी में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या बहुत सारा वक्त आपका इन डिस्ट्रैक्शंस में जा रहा है जो आपके लाइफ को एक सही रास्ते पे जाने में रोक रहा है. तो आपको अपने सेक्रल चक्र पे काम करने की जरूरत है. तो सेक्रल चक्र के लिए यू कैन यूज नेचर, यू कैन कनेक्ट विथ मदर अर्थ. आपका ये कार्ड भी यही बता रहा है. आपका ये कार्ड आपको कह रहा है कि आपके लिए एक नई दुनिया वेट कर रही है. आप कहीं ना कहीं रीस्टार्ट कर सकते हैं, चीजों को रिफ्रेश कर सकते हैं. आपके अंदर वो शक्ति है खुद को समझने की. आई थिंक दिस इज द टाइम, परफेक्ट टाइम टू गो विद इन योर सेल्फ एंड चेक विद इन द होल डे, लास्ट 3 months, लास्ट 5 months, व्हाट एम आई डूइंग विथ माई लाइफ. क्या आपकी जिंदगी उस जगह पे जा रही है जहां आप लेके जाना चाहते हैं? बिकॉज these 1, 2, 3 and 4, these 4 cards are telling you you need to work on yourself. Even this one. But if you work, this is waiting for you. This is waiting for you. This card is also saying that maybe you are looking for a house. शायद आप एक अपना घर बनाना चाहते हैं. You want to purchase a house. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, डिस्ट्रैक्टेड रहने से, अपना दिन वेस्ट करने से, लोअर चक्रास एक्टिविटी में रहने से आपका ये काम नहीं होगा. लेकिन ये कार्ड आपको एक बहुत बड़ी होप दे रहा है. दिस इज अ कार्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कार्ड ऑफ बैलेंसिंग, कार्ड ऑफ रीस्टार्टिंग समथिंग. So you should restart the way you are living your life. Make a goal list, make a to-do list, make a priority list, and then start. Because this is a beautiful promise of bringing everything what you need in life. If you want in life, whatever you dream, you can make it come true. But that is possible when you are out of your temptation, out of your distractions, out of your waste of time, right? So this is the reading for you. I just wish best of luck. Lot of things are coming for you, but you need to work upon yourself, and we will be coming. Many more such readings will be there for you and for all the people. Stay in touch, stay connected, and work on yourself. Thank you, pile number 1. Okay, pile number 2. Welcome. आज हम बात करेंगे आपके सक्सेस की. वो कौन सी चीजें हैं जो आपको सक्सेस लेके दे सकती हैं? वो क्या गाइडेंस है जिससे आप सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं? वो कौन सी रुकावटें हैं और वो कौन से इंस्पिरेशन है जो हमें सक्सेस की तरफ लेके जा सकते हैं? लेट्स स्टार्ट. ओके, तो सबसे पहली बात, आप जो भी चीज अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं उसके लिए आप फोकस्ड रहें. इट्स वेरी इजी टू बी डिस्ट्रैक्टेड. इट्स वेरी इजी टू लिसन टू एवरीवन बट नॉट टू योरसेल्फ. तो ये आपको यही कह रहे हैं कि आपको एकदम फोकस्ड में रहना है.
आपने अपने गोल्स बनाए, अगर नहीं बनाए तो सबसे पहले अपने गोल्स क्लियर करें. लेट मी टेल यू वन थिंग, यूनिवर्स तब तक आपके लिए काम नहीं करता जब तक आपके अंदर क्लैरिटी नहीं होती. आपके अंदर क्लैरिटी आएगी, आपके गोल्स दिखेंगे तो आपका फोकस भी लगेगा. तो ये कार्ड आपसे बहुत साफ साफ कह रहा है कि यू हैव टू बी फोकस्ड. इफ यू आर नॉट फोकस्ड, थिंग्स विल नॉट वर्क आउट फॉर यू. पर इसका मतलब ये भी है कि अगर आप फोकस में रहेंगे तो एवरीथिंग विल वर्क फॉर यू. लेट्स सी द अदर कार्ड. ओके, इसका मतलब ये भी है कि अभी आपकी लाइफ में काफी स्ट्रेस चल रहा है. कहीं ना कहीं एक साथ बहुत सारी चीजें घट रही हैं. एंड देयर माइट बी मेनी पीपल हु आर काइंड ऑफ बॉदरिंग यू. एक तो आप फोकस में नहीं रह पाते हैं, ऊपर से आपके साथ ये सब हो रहा है. आप स्ट्रेस में हैं, आप परेशानी में हैं. इसका मतलब ये तो तय है कि आप अपने करियर के लिए जो पाना चाहते हैं, जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं, वहां आप नहीं जा सक रहे हैं. तीसरी बात, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये भी बताती है क्लैरिटी. आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है. यू आर मिक्स्ड ऑफ लॉट ऑफ थॉट्स, लॉट ऑफ इमोशंस. आपके माइंड का चैटर कॉन्स्टेंटली चालू रहता है. दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन यू आर नॉट एबल टू फोकस्ड. यू आर नॉट एबल टू बी फोकस्ड. एंड बिकॉज यू आर नॉट फोकस्ड, आपको वो चीज अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया है. चाहे वो करियर हो, चाहे खुद का बिजनेस हो, चाहे जॉब हो. करियर फ्रंट पे एवरीथिंग विल बी इन लिटिल ट्रबल व्हेन यू हैव दीज 3 एरियाज. क्लैरिटी नहीं है. ये क्या बोल रहा है? ये बता रहा है क्लैरिटी लाना जरूरी है. तो अगर आप अपना मेंटल क्लैरिटी लेके आते हैं, अगर आप अपने आप को स्ट्रेस से बचा लेते हैं, और अगर आप अपने आप को फोकस रखते हैं, दीज आर द कीज which will bring you success. Let's see more keys. Okay. Obstacle and challenges. जब हमारी जिंदगी में कोई भी रुकावट आती है, हमारी जिंदगी में कोई भी तकलीफ आती है, हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई फेलियर आता है, तो या तो हम उससे सीखते हैं या तो हम वहां पे रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं. आप क्या करते हैं? आपकी तकलीफें जब आती है तो आप रुक जाते हैं क्या? हो सकता है कि आप अपनी तकलीफों से हार जल्दी मान लेते हैं. आपकी तकलीफें आपको लेसन नहीं देती हैं, लेकिन आप वहां से थक जाते हैं. तो ये ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस, अगर ये सब आपने ध्यान नहीं रखा तो आने वाले हैं. और अगर आपको जिंदगी में ऑब्स्टेकल्स आए हैं तो क्या आपने उसको ही अपना सच तो नहीं मान लिया? जिंदगी में रुकावटें आती है, लेकिन रुकावटें लेसन्स लेके आती है. फेलियर्स हमें कुछ सिखाने आते हैं. तो अपने ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस में हमें फंसना नहीं है. थोड़ा आगे देखते हैं फॉर द मोर क्लैरिटी. ओके, आपका करियर ऊपर नीचे तो रहता है. आप फोकस नहीं रख पाते, स्ट्रेस है, आप बातों को, आपका मेंटल क्लैरिटी नहीं है, ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस आपके लगे रहते हैं, एग्जॉशन. शायद आप थक भी चुके हैं, आप इतना सब से गुजरे हैं कि अभी आपके अंदर एक थकान सी आ गई है. आगे कुछ होगा कि नहीं, अच्छा कुछ बड़ा होगा भी या नहीं, मैं अपने लाइफ तक पहुंचूंगा या पहुंचूंगी या नहीं, ये आपके अंदर है. आपके अंदर थकान सी आ गई है. आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस नहीं रहे, आपके अंदर वो फायर नहीं रहा है. रीजंस आर दीज 1, 2 and 3. But very beautiful part is these are shaman cards. Shamanic messages आपको मिलेंगे. टबैको इज लाइक एन ऑफरिंग. जब कोई स्पिरिचुअल प्रोसेस होती है, नेटिव्स अमेरिकन जब करते हैं, शमानिक हीलिंग में जब लोग करते हैं, तो टबैको को अर्थ को ऑफर किया जाता है. तो इसका मतलब है आपको भी थोड़ी सी ऑफर, बस सोशल सर्विस करना आप शुरू कीजिए. अपने आप को किसी सोशल कॉज के साथ जोड़ के देखिए, आपको अच्छा लगेगा. आपको ये जो एग्जॉशन है ना, उससे आप बाहर निकलेंगे. सेकेंड, टबैको आपको प्रोटेक्शन भी देता है, और क्योंकि एक मस्कुलिन एनर्जी लेके आता है, इसका मतलब है कि आपका प्लानिंग भी अच्छा नहीं है. तो क्लैरिटी, प्लानिंग एंड डिसाइडिंग द गोल्स टू स्टे फोकस्ड, that will really help you. These are the keys for your success. I'll get one more card for you. Amaterasu, come out of the closet. अपने अंदर अंदर रहते हैं आप, अपने मन की बात नहीं करते, स्ट्रेस में रहते हैं, किसी से शेयर नहीं करते. उसकी वजह से क्या हो गया कि पूरा का पूरा जो आपका एनर्जी है वो ब्लॉक्ड हो गया है. और उस ब्लॉक्ड एनर्जी की वजह से आपका करियर, आपका हेल्थ, आपकी लाइफ, हर चीज एक एग्जॉशन की तरह लग रही है. सो वी नीड टू वर्क अपॉन दिस.
you can do some breath work, you can connect with nature, you can do pranayam, you can do yoga. There are so many things, but one thing is very important. You need to have some self-talk for mental clarity. You need to do some meditation for focusing. You need to do some pranayam for your stress. You need to talk to people. You need to share what you are going through so that you are not suffering alone and in your own zone. And this will help you to come out of exhaustion, and that will help you to come out of all the obstacles and challenges. Just take care of yourself. Stay connected with us. We are coming up with more new readings and more new insights, just like this. Thank you so much, pile number 2. Okay, pile number 3. Here are the readings for you. देखते हैं कि वो क्या चीज है जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी. वो क्या गाइडेंस है, वो क्या टूल्स हैं, कौन सी परिस्थिति आपको परेशान कर रही है और उससे हम कैसे निकल सकते हैं और कैसे एक सक्सेसफुल अबंडेंस वाली लाइफ हम पा सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. ओके, सो इफ दिस इज द कार्ड health and healing, maybe there is some health issue going on, maybe there is something which was really bothering you mentally, emotionally or physically, लेकिन हेल्थ और हीलिंग का टाइम आ चुका है. तो अगर आप लोगों को कहीं लगता है, अगर आपको ये लगता है कि नहीं, दिस इज द एरिया वेर आई एम सफरिंग, दिस इज द पार्ट वेर आई एम नॉट फीलिंग गुड, इट इज टाइम टू हील इट. ओके, अगर कोई फिजिकल इश्यू है तो उसे चेक करवा लें. अगर कोई मेंटल इमोशनल इश्यू है तो उस पर अपने आप काम करें. कहीं ना कहीं हेल्थ और हीलिंग अगर आपके सक्सेस कीज में आया है, इसका मतलब आपके हेल्थ की वजह से भी शायद आप अपने काम में उतना ध्यान नहीं दे पा रहे और उतना जो आप सक्सेस चाहते हैं वो शायद आपको नहीं मिल पा रही है. तो उस चीज को हम सॉल्व करते हैं. एक आपके लिए मैं कार्ड निकालती हूँ स्पेसिफिकली फॉर हेल्थ और हीलिंग के लिए कि व्हाट विल हेल्प यू इन दिस. देखिए, कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन का. तो कभी कभी हम ओल्ड पैटर्न्स में, हमारी ओल्ड लाइफ में फंस जाते हैं जिसकी वजह से हमारा हीलिंग नहीं हो पाता है. एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको. अगर हम पुरानी ही तरह से इमोशनल सेल्फ को हैंडल करते हैं तो वो चीज हमें परेशान ही करती रहती है. हम नए नजरिए से, नए पर्सपेक्टिव से अगर चीजों को हैंडल करते हैं तो वही चीज जो हमें दुख दे रही थी वो अब दुख नहीं देती. तो दिस इज अ टाइम वेर यू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ फॉर हेल्थ एंड हीलिंग. ओके, आगे बढ़ते हैं. लेजीनेस, बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड है ये. इफ यू लुक एट द पर्सन इज सिटिंग हैविंग पीना कोलाडा, लेकिन उनका ये ध्यान नहीं है कि पीछे का ग्लास जो है वो टूट गया है. तो अगर आप अपने करियर के एस्पेक्ट में जहां पे भी है, जहां आपको लग रहा है कि अब मैं उस जगह पे पहुंच गया हूं जहां पे मुझे अब मैं शांति से बैठ सकता हूं, नाउ आई डोंट नीड टू वरी एनी मोर, दिस इज सेइंग दिस इज नॉट द टाइम टू सिट. इट इज टाइम टू कीप इन एक्शन. इट इज टाइम टू कीप मूविंग. और अगर आप ध्यान से देखें, ऊपर एक बर्ड है जो फ्लाई कर रही है. इसका मतलब क्या है कि आपकी जगह यहां नहीं, यहां है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू विल बी अचीविंग इन लाइफ. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर वेटिंग फॉर यू. सो डोंट जस्ट laze around. It's time to get up and start going after other projects, other dreams which you already know which are there. तो शायद हेल्थ की वजह से शायद आप रुक गए हैं और आप थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, लेकिन आप आराम करते करते ये ना सोचने लगे कि बस भाई अभी तो मैं मजे में हूं, बस यहीं पे मुझे मजा आ रहा है, नाउ एवरीथिंग इज फाइन, बिकॉज दिस इज नॉट वर्किंग. तो अगर आप बैठेंगे भी तो भी वो चलेगा नहीं. आपके लिए बहुत कुछ है जो आपको अचीव करना है. सो जस्ट कम इन दी एक्शन जोन. ओके, नेक्स्ट. ये भी दिखा रहा है, अगर हम देखें, दिस इज 4 ऑफ कप्स. इमोशनली आप बहुत अच्छे जोन में नहीं हैं, तो पीपल हु नीड हीलिंग दे माइट बी इन दिस जोन. और अगर हम देखें ना, तो अगर हेल्थ, हीलिंग, लेजीनेस, ये तीनों चीजें कनेक्टेड है. जब इमोशनली अच्छा फील नहीं करते तो हम काम नहीं करना चाहते. जब हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होती हम काम नहीं करना चाहते. लेकिन इन सब के लिए आंसर है ये, दैट यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर डे. आपको अपने हेल्थ के लिए, अपने हीलिंग्स के लिए, अपने थॉट प्रोसेस के लिए नई नई प्रोसेस, नए नए लोगों से मिलना, नए प्रोजेक्ट्स के लिए काम करना, नए आइडियाज के लिए काम करना, अपने दिन को शेड्यूल में डालना. मॉर्निंग रिचुअल्स आप एक प्लान कर सकते हैं कि मॉर्निंग में अफर्मेशन से अपना दिन शुरू करें, प्राणायाम से शुरू करें, अपने आपकी एनर्जीज पे काम करें. यू नो वेयर यू आर सफरिंग. इज इट योर हेल्थ और इट इज योर हार्ट? दिस इज एन इमोशनल लॉस कार्ड.
तो कहीं ना कहीं आप इमोशनली थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां रुकना नहीं है. लेट्स सी व्हाट द अदर कार्ड इज टेलिंग यू. वाओ, you are blessed. Let me tell you this, because though you have gone through something, though this was a break kind of a time, maybe because of corona or something, लेकिन आपको मिल रहा है material and spiritual prosperity. इसका मतलब है कि you are a blessed person. Whatever you will decide, you will make it come true. एंड लॉट ऑफ मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है. होता क्या है, हम सबके पास पैसा होता है लेकिन मन में शांति नहीं होती, खुशी नहीं होती. लेकिन इन योर केस आपके पास मटेरियल प्रॉस्पेरिटी भी आने वाली है और आपके पास स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी भी आने वाली है. तो एक बात हमें समझनी है इसके अंदर, क्यों सिर्फ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी नहीं लिखा है, क्योंकि अगर ये लिखा है स्पिरिचुअल, इसका मतलब है कि वॉट एवर यू अर्न, अ वेरी स्मॉल पार्ट, वॉट एवर यू फील लाइक, स्टार्ट donating, start contributing. Whatever you have gained as a human being, it's time to share. And this is very, very important part of spiritual prosperity. See, exactly. This is the card this is the thing which I'm talking about. Sharing. Look at this goddess. She is full of everything. Love, light, prosperity, and she loves to give. What we need to understand is, when we give, it becomes a circle. When we give, it comes back. When we give, it comes back. ये दोनों बहुत कनेक्टेड हैं. प्रॉस्पेरिटी को आप शेयर करेंगे तो प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, स्पेशली इन योर केस पाइल नंबर 3. ओके, लास्ट देखते हैं कार्ड क्या कहता है. ओके, एम्बर, मस्कुलिन, थर्ड चक्र, वाटर. This card is telling you that though you are a very planned person, though you have always been a very confident person, but maybe because of this, you are kind of little in low zone. You can connect with the energy of sun. सुबह अगर आप उठते हैं, सुबह अगर सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य को अगर जल आप ऑफर करते हैं, वाटर ऑफर करते हैं, सूर्याय नमः के मंत्रा के साथ, इट विल रियली हेल्प यू टू गेन योर कॉन्फिडेंस, योर सेल्फ एस्टीम. दिस कार्ड इज ऑल्सो टेलिंग यू दैट यू नीड टू प्लान थिंग्स, यू नीड टू बी लिटिल मोर प्रैक्टिकल इन लाइफ. कहीं ना कहीं इमोशनल लॉस के बाद थोड़ा सा आप अपने कॉन्फिडेंस पे थोड़ा सा शेकी हैं. दिस कैन रियली हेल्प यू व्हेन यू विल कनेक्ट विद द एनर्जी ऑफ सन एंड विद द एनर्जी ऑफ योर ओन सोलर प्लेक्सिस चक्र. सोलर प्लेक्सिस चक्रा के लिए आपको कुछ नहीं करना है. आपकी जो अपर एब्डोमिनल एरिया है वहां पे आपको फोकस करके सोलर प्लेक्सिस चक्रा के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है. आप कपालभाति कर सकते हैं, दैट इज फॉर सोलर प्लेक्सिस चक्रा ओनली. तो ये सारी चीजें आप ये करें. थोड़ा सा अपने पे इमोशनली काम करें. लेजी होने का, आराम करने का टाइम चला गया, उसे रियलाइज करें. एक थोड़ा सा अगर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक रूटीन सेट करना पड़ेगा, एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा. हेल्थ की बात है, आपको अपने खाने पीने में कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे. इफ यू कैन डू दोज थिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग. एंड देन लेट मी टेल यू, देयर इज नो स्टॉपिंग. You can achieve and you will achieve everything you want, dream, desire in your life. You are a blessed person and know this, and that's why you cannot laze around. People who are blessed with such blessing, they need to be in action. Okay? Thank you so much, pile number 3. Keep connected with us because we will be coming with deeper insights to know about self and about life. It was really nice to have you. Thank you so much. वेलकम पाइल नंबर 4. देखते हैं आपके लिए सक्सेस के लिए क्या कीज, क्या गाइडेंस, क्या टूल्स हमें मिले हैं. हम सब चाहते हैं हमारी जिंदगी में आगे बढ़ना, लेकिन कभी जिंदगी ऊपर कभी नीचे चलती है और हमें तब पता नहीं चलता कि हम सक्सेस को कैसे पाए, कैसे हम अपने रुकावटों से बाहर निकले. देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं. टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन. सो वॉट एवर यू आर फेसिंग, टेक चार्ज ऑफ दैट सिचुएशन. लोगों से सलाह लेना, लोगों की बातें सुनना, हमेशा किसी न किसी की बातों में आके चीजें करना, वो नहीं चलेगा. हमारे जिंदगी में जो कमजोरियां हैं, खुद को विक्टिम बना के चीजों को छोड़ देना, वो नहीं चलेगा. दिस इज द टाइम टू टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन. ये कार्ड बिल्कुल ये कह रहा है कि आप अपने आप डिसीजंस नहीं लेते हैं. आप बहुत बार विक्टिम की तरह से बिहेव करते हैं, बाहर की परिस्थितियों पे चीजों को छोड़ देते हैं, जो बिल्कुल चलेगा नहीं. आपको इस सिचुएशन को अपने हाथ में लेना होगा. Oh my God, this is the same thing, which is kind of confirming the same thing. Just look at the picture.
दिस पर्सन इज शोइंग दिस पर्सन हु इज ऑलरेडी टायर्ड टू रीच देयर, और इसके ऊपर एक और कोई रूस्टर भी बैठा है और ये इसके ऊपर बैठा है। इसका मतलब आप लोगों की बातों से बहुत ज्यादा बर्डन हो जाते हैं, लोगों के ओपिनियन, लोगों के बातों को वजन में लेके उनकी बातों के हिसाब से जिंदगी जीने में, उस प्रेशर में आप बहुत ज्यादा बर्डन हो गए हैं। दैट इज वन ऑफ द रीजन यू आर नॉट गेटिंग द सक्सेस इन योर लाइफ। These are so interconnected. You are so burdened and that's why you need to take charge of this situation. Okay? आगे देखें, ब्यूटिफुल कार्ड, दिस इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब है वक्त बदलने वाला है। जैसे आप इसे बदलेंगे, आपका वक्त बदलना शुरू हो जाएगा। अपने आप डिसीजंस लेंगे एंड न्यू थिंग्स, वंडरफुल थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू। ओ माय गॉड, I must tell you, very big change is coming in your life. And let me look for the positive only. जैसे आप अपने फोकस को खुद पे लाएंगे, अपने पे काम करेंगे, this whole world universe is waiting for you to do that. And once you do that, accelerated motion, उसके बाद जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी आपने सोचा है, उसको बहुत ही गति में, मतलब बहुत जल्दी आपका वो काम होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? चार्ज लीजिए। आप क्या चाहते हैं जिंदगी में, क्लियर हो जाइए। लोगों ने क्या बोला है वो नहीं, लोगों की एक्सपेक्टेशन से नहीं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपका अंतर्मन आपको क्या कहता है, उसको ध्यान में रखें। एंड वंस यू टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, इस बर्डन को हम साइड में कर देते हैं, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज वेटिंग फॉर यू। और हर चीज मोशन में है। आपके सपने आप बहुत जल्दी पूरे कर सकते हैं। एक होता है ना कि एक ब्लेसिंग होती है, ग्रेस है, तो इस जगह आपको एक ब्लेसिंग है कि आप जो भी सोचेंगे, आप जिस भी चीज में अपनी मेहनत, अपना फोकस लगाएंगे, वो चीज बहुत जल्दी आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होके आ सकती है। एंड दैट्स सच अ वंडरफुल थिंग। वाओ, इफ यू सी द कार्ड, क्लाउड्स है, और ये जो बुद्धा का जो फेस दिखाया है वो क्लाउड की भी ऊपर स्टार्स में चला गया है। इसका मतलब है कि जब आप अपने पे भरोसा करेंगे, जब आप अपने हिसाब से डिसीजंस लेंगे, जब आप अवेयरनेस के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ अपने पे काम करेंगे, यू विल बी एज पावरफुल एज अ क्रिएटर। These four cards are such a wonderful journey from this to this to this to this to this. It's a spiritual growth, it's a material growth, it's a prosperity, consciousness, blessings, manifestation power, everything you are gonna get. It's a wonderful journey. Please don't burden yourself. Please don't just listen to others. Listen to your heart. Listen to your soul. And once you take charge of your life, you will just grow and you'll affect many people. Your growth is gonna affect many people. So please be wise and take the right decision of taking the charge of the situation, because you can do it. You have that power, you have that energy, you have that understanding as well. आपके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड निकालती हूँ for the further understanding. Beautiful. Just look around. Burden, suffering in silence. Waiting game. You are waiting for people to guide you. You are waiting for people to understand. You are waiting for people to approve your plans or your dreams. Don't do that. The waiting game is over the moment you take charge, and then you will be in the amazing energy and connected with the divine energies. Let's see the last card. Silver. This is the card of hope. This is the card of working on self. This is the card of protection. This is the card of wisdom. And when you are getting this card, let me tell you, this card has the feminine energy. So you need to somewhere connect with your emotional self. ये जो बर्डन है, इससे आपको बाहर निकलने के लिए अपने इमोशनल सेल्फ पे काम करना ही पड़ेगा. तो प्लीज स्टार्ट डूइंग दैट. एंड देयर इज beautiful energies of huge success is waiting for you. Thank you so much, pile number 4. It was really lovely to have you all. Keep connected because we are coming up with more insights, more guidance,
and more knowing about self and life. Thank you so much.